Okay. So I hope my screen is visible to you all. Yes, ma'am. Okay, fine, fine. Yes, ma'am. Okay, right. So we have discussed different types of companies. Please understand this. I was talking about on the basis of nationality. It is basically when company is incorporated within India, it is domestic. Else, if it is reversed, if it is on incorporated outside India, it is foreign company. No matter company have branches in India, company have employee base of India, company have contracts with the raw material suppliers from India. So it may be part of their expansion or diversification, but the most important term is incorporation. If it is getting registered as per Indian Companies Act, that means either 1956 or prior to companies 1956 or as per new act 2013. If it is registered under this act, it is domestic. If it is registered not as per this act, it is foreign. Okay, yes. So now please understand, there have been continuously, like I mentioned, efforts have been made by the government in order to systematically prove it onto the company's point of view. So Companies Act is basically the common law which is applicable to companies operations, companies management, right? So number of committees have been formed up, like Sachar committee, Iradi committee, Naresh committee. All these committees have given certain legislations, have given certain provisions, compliance or rules and regulations that bind the company. So companies law or companies act is basically for companies operation, companies management of funds, companies binding part as to what company is supposed to do. Understand, company is not a natural person, it is a artificial person. It has a legal existence. So it is to be run by shareholders, it is to be run by founders, it is to be run by directors, but that only within the legal framework. Okay, yes. When we talk about company is known by most important documents. One document, two important documents are there. One important document is MOA, Memorandum of Association. This is the prima facie fundamental document. I'll be talking about this document in detail with you. But what is MOA, Memorandum of Association? Understand from this five point of view. Number one, it is the most important document of the company. Second, it is the fundamental charter of the company. कंपनी कैसे बनेगी, कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स होंगे. सो कंपनी का एक बेस, कंपनी का एक फंडामेंटल, कंपनी का एक दायरा सीमित करने वाला ये जो दस्तावेज है, इसको हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं. थर्ड, this document is going to define the relationship of company with public, with external environment. सो इट इज लाइक कंपनी का जो रिश्ता एम्प्लॉयज के साथ होगा वो इंटरनल हो गया. कंपनी का रिश्ता गवर्नमेंट के साथ, कंपनी का रिश्ता बैंक के साथ, कंपनी का रिश्ता पब्लिक एट लार्ज के साथ, वो ये डॉक्यूमेंट डिफाइन करेगा. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक रिलेशनशिप डिफाइन करता है. प्लीज बी ऑन टाइम, राइट. So, number four, very important. Company cannot cross the limits of this MOA. कंपनी इससे बाहर नहीं जा सकती. कंपनी ने जो लिख दिया इस डॉक्यूमेंट में, कंपनी को वो करना जरूरी है. कभी इलेक्शंस होते हैं, मोमेंटम आते हैं कि गवर्नमेंट ने ये एजेंडाज लिए हैं, इन 5 सालों में अगर सरकार बनती है तो ये करेंगे. मैनिफेस्टोज को लेके चैलेंज होता है कि सरकार ने ये बोला था और ये नहीं किया. सो सेम वे कंपनी का ये जो डॉक्यूमेंट है, इट इज गवर्निंग डॉक्यूमेंट. कंपनी को इसके दायरे के अकॉर्डिंग काम करना है. इफ कंपनी गोज, इट इज नोन एज अल्ट्रा वायर्स. तो मैं ये टॉपिक आपको करवाऊंगी, अल्ट्रा वायर्स. अल्ट्रा वायर्स मीन्स कंपनी बियॉन्ड चलेगी एमओए के, right? So all this is basically the role of government or role of companies management, the power of company management, how company wants to define it.
this is the document which is in the written form and is submitted to registrar of companies before inspection or integration or you can say registration. किसी भी स्टेज के लिए MOA is very important. MOA may be amended from time to time. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो फर्स्ट टाइम सबमिट होता है वो कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए सबमिट होता है. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी लिखित रूप में देगी कि वो क्या करेगी. तो इसके अंदर क्लॉजेज हैं, कंपनी को क्या लिख के देना जरूरी है वो मैं आपको बताऊंगी. देयर आर 5 थिंग्स विच मस्ट बी देयर इन MOA. अब एक बार MOA बन गया तो क्या ये चेंज हो सकता है? यस, इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. Right? So now understand, MOA is the most important document which defines the fundamental charter of the company. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now, Yes, ma'am. as per section 2, subsection 28, memorandum means memorandum of association of a company originally formed or as altered from time to time in pursuance of any company law or this act. So it is just like either originally framed, that means at the time of registration of the company, or altered means amended, changed. लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं अमेंडेड. राइट? सो दिस इज हाउ सेक्शन 2 सबसेक्शन 28 हैज डिफाइंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंटेंट्स विच आर इंपॉर्टेंट. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. देयर आर दीज क्लॉजेज, इसको हम क्लॉजेज भी बोलते हैं इन लीगल लैंग्वेज. व्हाट आर द क्लॉजेज? क्लॉजेज मीन्स कंटेंट. सो नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, capital, liability, and one more is added, association clause. So this is how memorandum is initially given to registrar of company. So company ये सब कुछ writing में किसको देती है? ROC को, registrar of companies. अगर कंपनी पब्लिक लिमिटेड है तो 7 members must sign on it. अगर ये प्राइवेट लिमिटेड है तो 2 members must sign on it. अगर ये 1 मैन कंपनी है तो एटलीस्ट वन सिग्नेचर एज ए फाउंडर मेंबर मस्ट बी देयर इन दिस डॉक्यूमेंट. तो इस डॉक्यूमेंट को पूरा तैयार करने के बाद देखा जाता है कि कौन सी तरह की कंपनी है. पब्लिक होगी तो 7 लोग साइन करेंगे, मिनिमम 7 पीपल. अगर आपके प्राइवेट है तो मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 विल साइन. So in this way you have to ensure that these are the documents which are to be defined depending upon type of company. Okay, let us talk about first clause, name clause. Now name clause is basically the name of the company. It is the clause which is talking about proposed name of the company. It's just like whenever any child is taking birth, parents are more anxious and conscious about the name because that child will be known by the name. In the same way, company is in the toddler position, company is in the improvisation position. Company has to have certain name through which it is known, right? So that name is name clause. But कुछ conditions हैं. कंपनी नाम रखते टाइम ये चीज़ों को ध्यान रखेगी कि वो किसी ब्रांड एंडोर्सर का नेम नहीं होना चाहिए, किसी WHO, इंडियन नेशनल फ्लैग या समवट रिप्रेजेंटिंग ऑफ इंडिया अथॉरिटी एज ए प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, दैट शुड नॉट बी देयर एज ए नेम ऑफ द कंपनी. सो कंपनीज नेम शुड नॉट बी मैचिंग विद द एग्जिस्टेंट कंपनी. कोई भी आज रिलायंस नेम नहीं रख सकता, प्रपोज कंपनी का नेम. तो नेम क्लॉज को फॉलो करते टाइम 3-4 बातों का ध्यान एक कंपनी को रखना है. नंबर 1, इट शुड नॉट बी मैचिंग विद द एग्जिस्टिंग कंपनी नेम. उसके साथ मैच नहीं करना चाहिए जो पुरानी कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है. Number 2, it should not use any authorities of importance या political importance nature, right? आप कभी भी किसी भी अथॉरिटी का नेम नहीं यूज कर सकते हो अपने नाम में. इट मे बी WHO, UFO या कोई इंडियन पॉलिटिशियन विच इज गेटिंग पॉपुलर या कोई भी ऐसा जिससे कंपनी कुड हैव मिस एडवांटेज और मिस लीडिंग टू द अथॉरिटीज. पब्लिक को धोखा हो जाए कि ये क्या है. So name should not be undesirable.
नंबर 3, नेम शुड सिग्निफाई द पर्पस ऑफ द कंपनी। कहीं ना कहीं उसमें पता चलना चाहिए कि कंपनी का काम क्या है, तो नेम से ही आइडिया लगना चाहिए। जैसे आज अगर मैं बीपीसीएल की बात करती हूँ या एनटीपीसी की बात करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं पता है कि वो थर्मल पावर में डील कर रहे हैं, एनटीपीसी। सो योर नेम शुड मैच विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर कंपनी, राइट। और नंबर 4, आपकी जो भी नेम होगा, यू हैव टू इंश्योर कि आप उसमें प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगाते हो। अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो आपको पीवीटी एलटीडी लगाना जरूरी है, राइट। और अगर आपकी ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो आपको एलटीडी लगाना जरूरी है। सो यू शुड अंडरस्टैंड दिस। Until it is not one person company, one person company is allowed as per Companies Act 2013। तो आप उसको जो है इस तरीके से 1 person कंपनी मेंशन करके ओपीसी शो करके आप बताएंगे। प्राइवेट लिमिटेड में ये वर्ड आ जाएगा, लिमिटेड में ये आ जाएगा। ओपीसी तब यूज करोगे इफ इट इज 1 person कंपनी, तो आप ब्रैकेट में उसको लिख सकते हो 1 person कंपनी। कंपनी के नेम के पीछे भी एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो फंडा है मैं आपको बताने जा रही हूं कि जो कंपनी नेम्स यूज करेगी उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल भी उतनी होनी चाहिए। जस्ट लुक एट कि कंपनी भारत लगाना चाह रही है अपने नाम के आगे, उद्योग लगाना चाह रही है, इंडस्ट्री लगाना चाह रही है, अपनी मर्जी से नहीं लगा सकती, उसके लिए उसको इतनी कैपिटल शो करनी पड़ेगी एज पर द लॉ। लुक एट दिस, वेन एवर कंपनी वॉन्ट्स टू यूज कॉर्पोरेशन वर्ड, कंपनी हैज टू शो 5 crores एज मिनिमम ऑथोराइज्ड कैपिटल। कंपनी को ये प्रूफ करवानी पड़ती है सेबी के साथ। कंपनी को अगर ये वर्ड यूज करना है या कंपनी को ग्लोबल, यूनिवर्सल ये नेम यूज करने हैं एज ए फर्स्ट नेम, तो उसको 1 crore मिनिमम ऑथोराइज्ड कैपिटल शो करनी जरूरी है, राइट। सिमिलरली कंपनी ने हिंदुस्तान, इंडिया, भारत शो करना है एज ए फर्स्ट वर्ड, तो उनको 50 लाख शो करना जरूरी है, राइट। इन दिस वे इंडस्ट्रीज, उद्योग यूज करना है तो मिनिमम 1 crore ऑथोराइज्ड कैपिटल यूज बताना जरूरी है। सो दिस इज काइंड हाउ कंपनीज हैव टू यूटिलाइज दीज वर्ड्स। ऐसा नहीं है कि आज मुझे अगर कंपनी खोलनी है तो मुझे लगाना है लता कॉर्पोरेशन, आई कैन नॉट यूज इट, राइट, अनटिल दैट कॉर्पोरेशन वर्ड के पीछे मेरी उतनी ऑथोराइज्ड कैपिटल अप्रूव की है सेबी ने। इज इट क्लियर? नाउ अंडरस्टैंड, जब मैं आपको ये बता रही हूं उसमें एक पॉइंट ये है कि इफ एनी ऑफ द वर्ड्स इज यूज्ड विद इन द नेम, यानी कि इसको फर्स्ट नेम ना लेके आपने बीच में इसको लगा दिया, राइट। आपने ऐसे बना दिया हिंदुस्तान ग्लोबल कंपनी, तो ग्लोबल फर्स्ट वर्ड नहीं आया आपका, सेकंड वे आ गया, तो आपको जो ऑथोराइज्ड कैपिटल शो करनी है वो 50 लाख है। इज इट क्लियर? यस मैम, मतलब सेबी का अप्रूवल लेना जरूरी है हाँ आपको कोई भी कंपनी शुरू करने के लिए? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कंपनी जब भी शुरू करनी है तो अब तीन चेन बना दिए इन्होंने। वन इज योर कंपनी लॉ जो है ही, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, उसके बाद सेबी, उसके बाद आरबीआई। तीन पिलर्स हैं अब एक कंपनी स्टार्ट करने के। तो आपने कभी मतलब आरबीआई की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, ये उसमें चैनलाइज होकर ही आएगा। आप देखिए कि आपको अप्रूवल का मतलब क्या है कि आज ऑनलाइन आप कभी भी देख सकते हो कि आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है तो स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग, डिजिटल इंडिया के अकॉर्डिंग आपको एक फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन ही। अब तो ओके ये चीज होती है ऑनलाइन में, जब आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जिसमें आप बहुत ओके सारी डिटेल्स देते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें बैंक भी आ गया। जब आपने आधार कार्ड दे दिया तो आपकी पूरी बैंक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। जब आप एक हाँ प्रपोज नेम कर रहे हो उसमें वो रजिस्ट्रार उसको अप्रूव करके आगे भेजेगा। आपके जो नेम के पीछे आपने कैपिटल शो की है वो आपको अप्रूव होगी सेबी से। तो बैंक, सेबी और आरओसी वो तीनों एक ही जगह पे बैठे हैं। अब ये नहीं कि आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे फ्रॉम वन ऑफिस टू अनदर ऑफिस, गॉन आर दोज डेज। अब तो यस डिजिटल इंडिया है, फॉर्म खोलिए, भरिए, उसको अपलोड करिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को, एंड इट इज डन। ओके। हाँ हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके। जैसे हमारे अब मैं जैसे ऑनलाइन का बता रही थी आपको, तो हमारे ये DIN और CIN साथ में ही आपका हो जाता है ये भी काम। डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर ये जनरेट होते हैं। सो इट इज डन ऑनलाइन आफ्टर अपलोडिंग ऑल द डिटेल्स। ओके, फॉर्म्स आते हैं बहुत सारे, आप कभी चेक करिएगा कि आपके पास कोई अगर ऐसा है तो स्किल इंडिया के अकॉर्डिंग आप कौन कौन से प्रपोजल्स हैं, उन्होंने अलग अलग हेडिंग्स बना रखी हैं। तो स्किल इंडिया में आपको क्या लगता है कि आप किस में कंट्रीब्यूट कर सकते हो, आप उसमें अपना, अब तो गवर्नमेंट इज सो एंशियस, दे आर गिविंग यू लोन ऑल्सो, राइट। सो
प्रोवाइडेड यू हैव टू शो दीज एज ए मिनिमम ऑथोराइज्ड कैपिटल। ये इतनी ही होनी चाहिए, ये नहीं मैं कह रही हूं, इतनी शो करनी जरूरी है, इतनी अप्रूव करवानी जरूरी है वेन एवर यू हैव टू यूज दीज वर्ड्स। इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Yes, next, ma'am. okay. Registered office clause. Registered office clause is just like address of the company. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपको नेम दिया है बिकॉज योर पेरेंट्स वांट यू टू बी नोन बाय दिस नेम टू द सोसाइटी। सेम वे स्कूल में आपने एडमिशन लिया है, somebody has to give some information to your parents, so there is address which is required. Now registered office clause का मतलब है company has to ensure there is one office which is called head office. There are different offices of the company. Head office is only one. Rest are branch office. So company has to ensure all the communications, all the notices, all the informations are pertaining to that address. So company must have registered office for all the communication matters. अब registered office की clause क्या कहती है कि whenever company is going to start any business, company should have this office. नहीं है तो कंपनी इज गिविंग यू टाइम कि आप इन कॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर कोई ऑफिस अरेंज कर लीजिए। सो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब है गिविंग द एड्रेस टू द आरओसी। ये सारी इंफॉर्मेशन किसको जा रही है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। अगर आपका एड्रेस है इट इज फाइन, नहीं है तो यू कैन लीव इट एज ब्लैंक फॉर टाइम बीइंग, बट विद इन 30 days ऑफ द इनकॉर्पोरेशन यू हैव टू इंटीमेट टू द आरओसी अगेन। अगर आप 30 days में उनको इन्फॉर्म नहीं करते हो तो देयर इज काइंड ऑफ फाइन, राइट? अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस फिक्स नहीं हुआ, आपका हेड ऑफिस फिक्स नहीं हुआ तो देयर इज अ फाइन विद इन बीइंग रजिस्टर्ड आपको इम्प्लाई करेगा। इट मे बी 1000 फॉर एवरी डे, राइट? मैक्सिमम 1 लाख तक वो आपको फाइन लगा सकता है अगर आपका एड्रेस अपडेट नहीं हुआ। सो एवरी कंपनी मस्ट हैव रजिस्टर्ड ऑफिस। इज इट क्लियर? मैम एक क्वेश्चन है मेरा, इफ यू डोंट माइंड मैम, किसी का जो फेक कंपनीज है तो उनका कैसे मतलब बन जाता है, तो उनका एड्रेस चेक नहीं होता है क्या? हाँ, उन कंपनीज का नहीं होता। अब इंडिया में शेल कंपनीज बहुत थी, 3,50,000 तो 2017 में मोदी ने बहुत अच्छा काम किया था। यस कि मैम। हाँ वो किया था। शेल कंपनीज क्या होती है, एक रूम बता दिया, एक घर का एक रूम बता दिया कि ये हमारा ऑफिस है। तो वो सब स्कैम्स हैं। बेसिकली आपका रजिस्ट्रार भी इन्वॉल्व होता है। अब जो ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट किया है वो कहीं ना कहीं आपका एक स्कैम फ्री इन्वायरमेंट हो गया। ट्रांसपेरेंट। आप आधार कार्ड देते हो इन्फॉर्मेशन तो आपके जितने भी बैंक के लिंक होंगे, आपका अकाउंट हो सकता है आईडीबीआई में हो, आईसीआईसीआई में हो, कोई एफडी चल रही हो, वो सारी डिटेल एक प्लेस पे आ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने अगर देखना है कि हाँ ये फंड कंपनी के पास कितने, तो एक उसके डीआईएन नंबर और सीआईएन नंबर से ही जान लेंगे। तो इसीलिए शेल कंपनीज बहुत जल्दी पकड़ी गई थी जस्ट बाय सीआईएन नंबर। तो इसको जैसे उन्होंने ऑनलाइन किया तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर से ही पता चल गया कि ये फेक कंपनीज क्रिएट की हुई हैं, छोटी मोटी जो कंपनीज हैं। सहारा का स्कैम कभी ना पकड़ा जाता। आज सहारा की आप जब भी देखते हो तो सहारा इज वेरी कॉन्शियस। वो इसीलिए बेसिकली उसने कितने नीचे चिट फंड के नीचे जो सहारा स्कैम हम बात करते हैं कि चिट फंड स्कैम के अकॉर्डिंग उसने वो सारे अमाउंट जो है अपने हाउसिंग वाले में लगा दिए, जबकि उसको लगाने दूसरे बिजनेस में थे। तो डेफिनेटली स्कैम पकड़े जा रहे हैं, अब तो पकड़े जा रहे हैं। यस मैम, यस यू आर राइट, थैंक यू वेरी मच। ओके ओके। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लॉज एज टू व्हाई कंपनी इज एग्जिस्टिंग, राइट? ऑब्जेक्ट, व्हाई कंपनी इज एग्जिस्टिंग। जैसे अब मैं आपके एक स्कूल की एग्जांपल बार बार ले रही हूं कि आपका नेम रखा पेरेंट्स ने बिकॉज यू शुड बी नोन बाय दैट नेम, फिर आपको स्कूल में पढ़ने डाल दिया, राइट? और फिर एक ऑब्जेक्ट साथ साथ आपके पेरेंट्स बताते रहते बेटे पढ़ना है, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, अल्टीमेटली एजुकेशन विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल। तो कहीं ना कहीं वो आपका उद्देश्य खुद से सेट करके ही आपको स्कूल भेजेंगे। आपको 10th 11th तक आते ये समझ आ जाएगा कि व्हाट योर पेरेंट्स वांटेड। इनिशियल ईयर्स मे बी वेरी वेरी नॉटी ईयर्स और मे बी वेरी लेथार्जिक ईयर्स,
बट द मोमेंट यू आर इन 10th आपको 11th की इंपॉर्टेंस पता लग जाएगी. नाउ यू आर नॉट गोइंग टू रीड ऑल द सब्जेक्ट्स. सो दे आर गोइंग टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव. इन द सेम प्लेटफॉर्म कंपनी अगर एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी ने अपना कुछ तो उद्देश्य सोचा होगा कि वो क्या काम करेगी. सो इट इज बेसिकली द कंपनीज विजन, कंपनीज मिशन, कंपनीज ऑब्जेक्टिव, कंपनीज गोल टू गेट इट अचीव्ड. So objective may be main objective, may be ancillary objective, and this clause cannot be changed. बाकी clauses change हो सकती हैं. ये जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन नहीं होगी आपके हाथ में, आप इस क्लॉज को चेंज नहीं कर सकते. बाकी नेम क्लॉज चेंज करना है, थोड़ा सा नेम में चेंज लेके आना है, आरओसी की अप्रूवल, अमेंडमेंट फॉर्म भरा और आप कर सकते हो. ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए यू हैव टू जस्टिफाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट कि व्हाई यू वांट टू चेंज इट. क्योंकि बिजनेस एक बार स्टार्ट होता है, मैंने क्या कहा था, कंपनी एक बार स्टार्ट होती है तो एकदम से बंद नहीं हो जाती कि आपका मन नहीं किया या आपका बिजनेस लॉस में चला गया तो आपने बंद कर दिया. बिजनेस एक बार स्टार्ट होता है तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, कंटिन्यूस 8 ईयर लॉस अगर आप सफर करते हो तब भी वो बंद नहीं होगा. तब वो एक अथॉरिटी को रेफर कर दिया जाता है, SIBR, सिक इंडस्ट्रियल बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन. उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है आप चला के देखो. 3 साल वो चलाते हैं. अगर उनसे भी लगातार 3 साल ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है, फिर 4th ईयर तब भी बंद नहीं होता बिजनेस, फिर उसकी कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑक्शन करवा देती है. यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आपसे वो जो बिजनेस आपने सोचा था नहीं चला है तो आप बंद नहीं कर सकते, फिर उसकी ऑक्शन करवाई जाती है. एंड वट एवर बिडिंग, आज देखिए माल्या चल रहा है ऑक्शन का प्रोसेस, कंपनी बंद नहीं हुई है, राइट. तो SIBR को रेफर किया गया, उसके बाद 3 साल उनसे भी लॉस जनरेट हुए तो उसका ऑक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ. तो सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव मेनी चांसेस टू रिवाइव इट बैक. हो सकता है वो आपसे ऑब्जेक्टिव ना चला हो, आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि यस आई वांट टू हैव ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस. तो ट्रांसपोर्टेशन, आई वांट टू रन माय ट्रक फ्रॉम चंडीगढ़ टू दिल्ली एवरी डे. ओके, तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है. उस ट्रक में आप कुछ लोड अनलोड का कर रहे हो, वो भी मेन ऑब्जेक्टिव है. बट अगर आप एंसिलरी, उसके साथ कभी आप जाते हुए कोई पैसेंजर बिठा रहे हो, विच इज एंसिलरी, दैट इज योर अनदर ऑब्जेक्टिव. सो ऑल दीज ऑब्जेक्टिव से आपका बिजनेस नहीं चला है अगर, तो आपको कंटिन्यूस 8 ईयर तक लॉस दिखाना पड़ेगा अपने बिजनेस को. सो इज इट लाइक कंपनी हैज टू रन फॉर मिनिमम 8 years? Yes. Still when there is a loss, तो दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू वन यूनिट, SIBR, सिक इंडस्ट्रियल बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन. इस बोर्ड से भी अगर कंपनी रिवाइव नहीं होती, ये बोर्ड क्या करता है, ये रिवाइवल स्ट्रेटेजीज फॉलो करता है, यू टर्न स्ट्रेटेजीज फॉलो करता है कि बिजनेस चल जाए कैसे भी. 3 साल इससे भी अगर ऑपरेटिंग लॉस आ रहा है कंटिन्यूसली का मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ कि 3 years, ये नहीं बीच में प्रॉफिट आ गया तो यस फिर इसके चांस है रिवाइवल के. 8 साल में आपके तीसरे साल में प्रॉफिट आ गया तो उसको कंटिन्यूस नहीं बोलेंगे. मान लीजिए फर्स्ट ईयर लॉस था, सेकेंड ईयर लॉस था, थर्ड ईयर प्रॉफिट आ गया, कंपनी से ही आ गया, 4th ईयर फिर लॉस हो गया, तो वो 4th ईयर का लॉस इज 1, कंटिन्यूस 8 year लॉस हैव टू बी शोन. So it is not at all easy to get the company dissolved. Okay. Now this is how company is going to exist. So this is called object clause. Yes. SIBR मतलब आपका फंड्स में हेल्प करती है क्या, जब कंपनी बिल्कुल, लॉस? हाँ, जब कंपनी लॉस में होती है तो इनको लोन की तरह या इनको स्ट्रेटजी की तरह या इनका एक ऑक्शनर होता है या कमिश्नर, कलेक्टर, जिसकी भी ड्यूटी लगाती हैं ये, वो एक कंपनी को हेल्प करेगा, एक मैनेजमेंट का हिस्सा बन जाएगा कि कंपनी को ये स्ट्रेटजी इस टाइम पे यूज करनी चाहिए. तो हो सकता है दे आर चार्जिंग समथिंग, बट ये एक पीपल, मनी और ऐसे रिसोर्सेज अवेलेबल करवाती है जिससे कंपनी रिवाइव बैक कर ले. ओके, तो उसका तो रिकॉर्ड देखेंगे, मतलब कितने साल से वो लॉस में जा रहा है वगैरह. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो कितना साल वो लॉस में देखने 8 के year. बाद वो 8 year. नहीं, आप SIBR की हेल्प तो आप SIBR क्या है कि हर बैंकिंग, अब तो बैंकिंग की बहुत एडवांस हो गया है. मर्चेंट बैंकिंग में आपका बैंक ही बहुत सारी हेल्प आपको करता है. तो कोई कॉर्पोरेट ओके. काउंसलिंग, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे ऐसे काम हैं जब कंपनी को लगता है कि कंपनी उनसे नहीं चल रही है तो दे कैन इन्वॉल्व देयर मर्चेंट बैंकर. तो एक बैंकर थोड़ी फीस चार्ज करता है, वो एक बैंकर फैसिलिटी दे देता है कि ये पर्सन जो है इसको डील करेगा.
तो दैट इज पार्ट ऑफ ओके SIBR प्रोसेस। तो ये सारे के सारे जितने भी बैंक हैं वो SIBR के अंडर हैं, सिक इंडस्ट्रियल बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन। यानी कि जितनी भी ओके कंपनी सिक हो जाती हैं उनको कैसे रिवाइव करवाना है, ये इनका मेन एजेंडा होता है। तो ये जरूरी नहीं कि ओके। और 8 साल के बाद तो प्रोसेस ऑफ SIBR कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा, बट आप बीच में ही अगर हेल्प लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो इस बोर्ड की। ओके, अगर 8 साल में भी अगर कुछ इम्प्रूव नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो फिर ये कंप्लीट मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेता है कंप्लीट मैनेजमेंट कंपनी की, या कंपनी की। हाँ हाँ, फिर ये अच्छा, फिर फिर ये कंपनी चलाएगा। डिसॉल्व हो जाए? नहीं, डिसॉल्व तब भी नहीं होती, डिसॉल्व? डिसॉल्व तब अच्छा, भी नहीं होती। 3 साल ये चलाएगा फिर कंपनी को। मतलब 11 साल हो गए? 11 साल हो गए। फिर भी अगर उसके लॉस हो बाद रहा, उसके बाद भी अगर लॉस आ रहा है, 4th ईयर भी लॉस आया, तो फिर इसकी ऑक्शन करवा दी जाती है इन द प्राइवेट हैंड। नीलामी? हाँ, नीलामी? नीलामी, नीलामी। ओके फिर ओके ओके, प्राइवेट में थैंक यू कोई, मैम। ओके, प्राइवेट में कोई भी उसको लेना चाहे तो ले सकता है उस कंपनी को। ओके ओके ओके, ओके ठीक है मैम। ओके ओके। एक बेस रेट होगा ना नीलामी में? जो सेट होता है वो डिफरेंट कंसिडरेशंस के ऊपर होता है कि आपकी कितनी लाइबिलिटी हैं, कितने एसेट्स हैं, कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं विच आर एक्सपायर्ड, विच आर रिन्यूएबल। तो उसके बेसिस पे जितना भी आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर जिसको हम बोल देते हैं, वो उसके अकॉर्डिंगली मेथड डिजाइन करेगा कि हाँ मुझे इसमें ज्यादा फोकस करना है, इस पे नहीं करना है। ओके ओके ओके। तो रेट, इसका मतलब रेट तो मतलब मैजिस्ट्रेट ही ठीक करता है ना मैडम? हाँ, रेट। कलेक्टर या? हाँ, कलेक्टर रेट। ओके ओके, थैंक यू मैडम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, कुछ बच्चे आज पता नहीं टेस्ट दे पाएंगे या नहीं, देखते हैं। लाइबिलिटी क्लॉज, दिस इज द क्लॉज विच इज टॉकिंग अबाउट अमाउंट ड्यू टूवर्ड कंपनी। कि कंपनी स्टार्ट होते टाइम कंपनी ने कितनों से लाइबिलिटी, कंपनी का क्या रहेगा, अमाउंट कैसे डिफाइन होगी। जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब 3 तरह की लाइबिलिटीज आती थी विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय अमाउंट एंड अनलिमिटेड। सो ऑल दिस इज पार्ट ऑफ दिस। तो कंपनी की लाइबिलिटी मेंबर्स की कैसी रहेगी? अब तो डेफिनेटली यही चलता है, शेयर्स एंड अमाउंट। अनलिमिटेड है ही नहीं, अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती ये। सो दीज शेयर्स एंड अमाउंट आर एग्जिस्टिंग। सो व्हाट इज द अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स कंपनी, आइदर ऑफ शेयर्स और ऑफ अमाउंट। सो लाइबिलिटी, क्योंकि जो कंपनी स्टार्ट करते हैं उनको स्टार्टिंग में जितनी भी अमाउंट वो डाल रहे हैं, दे आर नॉट ओनर्स, उनको वो अमाउंट जो है इक्विटी में या कैपिटल में दिखानी पड़ेगी। एंड कैपिटल इज रिप्रेजेंटेड बाय बोरोड फंड। तो आपकी कंपनी जब आपको डिसॉल्व, आपके बंद भी होगी ना, तो भी आपको शेयर मिलेगा, आपको उसका परसेंटेज मिलेगा। आप ये नहीं कहोगे कंपनी बंद हो गई तो सारा का सारा प्रॉफिट मेरा हो गया। जो आपने स्टार्टिंग में लगाया है, जिस वे से लगाया है, उसके हिसाब से मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर विल बी गिवन टू यू। सो लाइबिलिटी का मतलब है हाउ मच ईच मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल टू गिव टू द कंपनी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस। आज कंपनी ने अगर 100 शेयर्स आपको दिए हैं, एक शेयर की वैल्यू 5 रुपीज है, तो योर लाइबिलिटी इज 500 रुपीज। वो कंपनी कैसे भी ले सकती है। कंपनी आज कहेगी कि आज 2 रुपए के हिसाब से आप दे दो, आप दे दोगे, फिर आपकी लाइबिलिटी कितनी बची? 3 रुपीज के हिसाब से। सो हाउ मच लाइबिलिटी ऑफ ए मेंबर इज ड्यू टूवर्ड्स कंपनी, राइट? सो अमाउंट ड्यू टूवर्ड्स कंपनी इज नोन एज लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कंपनी को देनी है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल का मतलब कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी। जैसे मैंने अभी आपको मिनिमम कैपिटल बताकर आई हूं कि कंपनी को एक लिमिट अप्रूव करवानी होती है जो सेबी करती है कि यस कितने शेयर्स कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी के वर्ड के ऊपर भी ये इंपॉर्टेंट है, कंपनी वर्ड्स के अलावा भी कैपिटल को बढ़ा सकती है, बट मिनिमम उतनी कैपिटल तो शो करनी ही है। आज कंपनी को अगर कॉर्पोरेशन वर्ड लगाना है अपने साथ, उसको 1 करोड़ की कैपिटल शो करनी ही पड़ेगी एज ए ऑथोराइज्ड। तो कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल को किस में शो किया जाता है? कैपिटल क्लॉज में। प्लीज अंडरस्टैंड कंपनी ये क्यों इंश्योर करती है, क्योंकि कंपनी को जब भी पब्लिक से डीलिंग करनी होगी तब ये वाली अमाउंट यूटिलाइज करेगी।
सो ऑथोराइज्ड कैपिटल में से कितना हिस्सा वो इशू करती है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन कंपनी। अब आपके अगर दिमाग में एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि मैम अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो क्या उसको ये क्लॉज देने की जरूरत नहीं है? नो, इट इज रिक्वायर्ड। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का शेयर हमेशा इशू होता है, बट वो पब्लिक के लिए नहीं होता। प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस कि शेयर तो होगा ही होगा। वेन एवर एनी कंपनी इज स्टार्टिंग, शेयर इज ए डिविजिबल यूनिट। तो डिविजिबल यूनिट दोनों कंपनीज के लिए है। ओनली डिफरेंस इज पब्लिक कंपनी वाला एक्सटर्नल वॉल्स में जाएगा। सो इट इज लाइक दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी के शेयर जो है वो कॉमन आउटसाइड पीपल फोर खरीद वॉल्स, सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कोई भी खरीद सकता है आउटसाइड फोर वॉल्स। उनको जब भी अपना एक फंड अरेंज करना है, सो दे आर यूजिंग आउटसाइड फोर वॉल्स ऑफ कंपनी। प्राइवेट कंपनी को जब भी अपना फंड यूज करना है तो दैट इज विद इन फोर वॉल्स ऑफ कंपनी। तो रिलायंस क्या पब्लिक कंपनी है? बिल्कुल रिलायंस, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, रिलायंस लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड से जैसे आप देखते हो कि रिलायंस लिमिटेड, ये लिमिटेड वर्ड जहां होगा वहां पब्लिक, प्राइवेट वाले को लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड। तो लिमिटेड वर्ड इज फॉर पब्लिक कंपनीज। तो आपको एक प्राइवेट और पब्लिक में ये चीज समझ आनी चाहिए, शेयर्स आर इशूड बाय बोथ कंपनीज। व्हाट इज द सिमिलैरिटी? शेयर्स आर इशूड बट शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टिवली ट्रांसफर्ड इन द प्राइवेट कंपनी। मतलब डायरेक्टर के हाथ से सीईओ में चले जाएंगे, सीईओ के हाथ से सीएफओ में जा सकते हैं, विद इन फोर वॉल्स ऑफ द कंपनी वो ट्रांसफर होते रहेंगे, वो घूमते रहेंगे। शेयर इशू भी होगा, दिया भी जाएगा, बट ओनली टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। बट शेयर इशू होगा अगर पब्लिक लिमिटेड में, तो वो आउटसाइड फोर वॉल्स, कंपनी अपने इंप्लॉइज को भी दे सकती है, बाहर भी दे सकती है। सो पब्लिक कंपनी के लिए जब कंपनी अपने इंप्लॉइज को शेयर इशू करती है, उस प्लान को हम कह देते हैं इसॉप, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। प्राइवेट लिमिटेड तो करती ही यही यूज है, प्राइवेट के पास तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो इश्यू भी शेयर होगा, इंप्लॉइज मेंबर्स, क्योंकि सारे उसके लिए इंप्लॉइज हैं कंपनी का। इवन जो मेंबर स्टार्ट कर रहा है वो भी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, वो उसको भी सैलरी मिलती है। लुक एट द रिलायंस लिमिटेड एग्जांपल कि मुकेश अंबानी इज ऑल्सो गेटिंग सैलरी फॉर दिस। उसकी सैलरी अमाउंट में जो है बैलेंस शीट में उसकी सैलरी शो होती है, राइट? सो इन दिस वे व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट कैपिटल क्लॉज, दैट मस्ट बी देयर। जैसे कैपिटल कितनी शो करनी जरूरी है, सो प्राइवेट को 1 लाख शो करनी जरूरी है, मिनिमम 1 लाख। पब्लिक लिमिटेड को 5 लाख मिनिमम शो करनी जरूरी है। सो दिस इज हाउ कंपनी हैज टू शोकेस देयर कैपिटल। नेक्स्ट इज एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन को हम सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी बोलते हैं। दीज आर दोज पीपल हु आर रेडी टू फॉर्म मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। सो दे आर बेसिकली सब्सक्राइबर्स। आपके लिए ये सब्सक्राइबर वर्ड बहुत कॉमन वर्ड है कि आपने कोई टेलीफोन फैसिलिटी ली, यू आर सब्सक्राइबर टू दैट सिम। सो इसी तरीके से कंपनी के साथ कौन एसोसिएट होना चाहता है, कंपनी के साथ कौन ऐसे पीपल हैं जो कि राइटिंग में कंपनी के मेंबर्स बनेंगे, जो सीईओ बनेंगे, जो चेयरमैन बनेंगे, जो वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। इनिशियली जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तो टॉप लेवल मैनेजमेंट डिस्कस हो जाता है। सो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नथिंग बट एसोसिएशन क्लॉज। कंपनी के 3 लेयर्स होती है मैनेजमेंट की, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये तो फिर भी बाद में हो जाएंगे डिस्कस। ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, इसमें चेयरमैन आ जाएंगे, इसमें प्रेस्टिजियस ऑनररी पोजीशंस आ जाएंगी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनीज आर रिप्रेजेंटिंग फेस। तो एसोसिएशन क्लॉज में दिस इज रिटन कि हमारे इनिशियली 7 मेंबर्स, पब्लिक लिमिटेड में 7 मेंबर्स कौन होंगे, उनके नेम, उनकी डिटेल्स, उनकी ईमेल आईडी, उनकी क्वालिफिकेशन, एवरीथिंग इज रिटन, right? So this is called association clause, right? Now I'll be talking about this topic in my next class, right? So ये जो 6 clauses मैंने आपको बताई हैं, this please understand these are the contents of memorandum of association. कंपनी इनसे बाहर नहीं जा सकती। कंपनी ने एक बार जो मेंशन कर दिया वो चेंज हो सकता है, वो अमेंड हो सकता है, बट कंपनी इनसे बाहर नहीं जाएगी। स्पेशली ऑब्जेक्ट क्लॉज के अगर बाहर जाती है तो देयर इज वन वर्ड विच इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स।
I'll be talking about this topic with you in my next class tomorrow. Tomorrow I have 2 classes with you. Please ensure that I'll be teaching you in the first class, and second class is for revision, where I will be taking your doubts. Okay? Anything you want to ask, please ask, else we are ending this class. Fill out the form, Google form, please, and just attempt the test. Those whose enrollment number is not generated, just ask from Ashutosh sir and get it done. Okay? ये ओपन है, मैं अपने आप इसको क्लोज कर दूंगी अराउंड 1. Clear enough? Thank you, ma'am. Okay, thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.